हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप यू ऑल आर वेल एंड एंजॉयिंग योर holidays, come studying also. Dear students, we are at the virtue of the completion of the class, this particular chapter actually. The chapter in the political science, in political science, the political parties. We have already discussed the challenges to the political parties. So after that, we are going to discuss how we can overcome those challenges. How those challenges can be overcome. Means reforms. What are the reforms that we can do or what had been already made? So in that context, we will discuss about how can parties be reformed and efforts made to reform the political parties. First of all, and these efforts have been made from three different institutions. So the constitution, it has been done. These have been the reforms that has already been taken place. So first of all, it is through the constitution. What had been done through the constitution? Through the constitution, it has been amended to prevent defection. What is the meaning of defection? Defection means split in party. Split in party. Party में टूट. It has been seen that after contesting the election, a party got some sorts of seat, and some of their winning candidate, elected candidate, has just leave that party and join another party, or they make their own party. Why they usually do? To just join the another party that are going to form the government. Means a party that failed to secure the majority. So some of the members of that particular party, once they feel that they are not going to form the government, so they just try to just move or join the another party that is going to form the government, so that they could get some advantages. They should be going to get some post of ministerships. This was their basic intention. So due to that, it lead to the political instability. It is a kind of cheating with the voters, because voters has given their vote on the name of a particular party. It may be possible they have given their vote against the party that these members are going to join. So it is a kind of cheating. Or such kind of things were happen on and often, and due to that, it creates a situation of horse riding. Horse riding means, जिसको कहते हैं हम लोग horse riding के क्रम में जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, एमएलए या एमपीज के विषय में कहते हैं कि उसकी खरीद फरोख्त, यानी लालच देकर के उनको अपनी तरफ मिलाना, ताकि हम उस पार्टी को स्थिर कर दें और अपनी पार्टी की सरकार बना दें. इट्स वन ऑफ द मेजर चैलेंज जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लाती है. इसको दूर करने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया. क्या बनाया गया? एंटी डिफेक्शन लॉ. एंटी डिफेक्शन लॉ. अब इस लॉ ने, देखिए, इसमें कई परिवर्तन हुए. एक समय ये था कि भाई 1/3 अगर मेंबर चले जाते हैं दूसरे पार्टी में, तो वो लीगल होगा, वो स्प्लिट को लीगल माना जाएगा. बट इसका भी नजर फायदा उठाया जा रहा था. मान लीजिए एक पार्टी के 10 ही मेंबर है, अब 10 में से 4 निकल के चले गए, पार्टी टूट. तो नाउ ऑन सीइंग द होल सिनेरियो, कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अमेंडेड, इट हैज बीन मेड द लॉ दैट यदि कोई भी सिटिंग एमएलए या एमपी, यानी जो भी चुने हुए निर्वाचित प्रतिनिधि हैं लोकसभा में और विधानसभा में, जो जनता के द्वारा सीधे चुने गए हैं, इफ दे चेंज देयर पार्टी ड्यूरिंग देयर टेन्योर, यानी अपने चुनाव अवधि में, जिस समय वो चुन के आए हैं, जो 5 साल का पीरियड मिला है उनको एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमपी या एमएलए, अगर वो अपनी पार्टी बदलते हैं तो दे आर गोइंग टू लूज देयर सीट ऑल्सो, एंड दे हैव टू अगेन फेस द
election to become the member of the house. इसने क्या किया, एक जबरदस्त रोक पैदा कर दी. No candidate is wishing to contest election in a very short period of time. क्योंकि जनता है, सब जानती है, वो हार जाएंगे. तो इस प्रकार की चीजों के बाद, इस नियम के बाद, ये हॉर्स राइडिंग के ऊपर, जो हॉर्स ट्रेडिंग करते हैं, नॉट राइडिंग, हॉर्स ट्रेडिंग, इसके ऊपर एक रोक लगी है. अब ये बहुत मजबूती से काम कर रहा है. हाँ, अभी भी ये चीज होती है. कब? जब किसी भी हाउस का टेन्योर समाप्त होने को होता है, 6 महीने बचते हैं, तो ये मेढकों की तरह इस पार से उस पार कूदने लगते हैं. 6 महीने का अवधि, इसलिए क्योंकि 6 महीने में इलेक्शन होने हैं, बहुत कुछ खत्म लूज करने को है नहीं है. और उस जगह पे कोई फ्रेश इलेक्शन हो करके ना कोई बाई इलेक्शन होने वाला नहीं है, नहीं होने वाला. क्योंकि 6 महीने के अंदर में इलेक्शन होकर नए आ ही जाएंगे. तो ये रूल है कि ऐसा चुनाव करने की जरूरत वहां नहीं है. तो अब ये होती है, लेकिन बीच में पहले बार बार होती थी, अब इसके ऊपर कंट्रोल लगाई गई है, एक बेसिक चेक नहीं. नेक्स्ट देखिए, अब जो मैंने बताया कि नाउ एमपीज एंड एमएलएज विल लूज देयर सीट इन द पार्लियामेंट और अ स्टेट असेंबली if they change the party, and they have to again contest the election to become the member of that particular house. Secondly, the constitutional changes करके बनाया हुआ, it has been already made. Next है from the Supreme Court. Supreme Court ने भी अपनी इसमें दखल दी, इस प्रकार की घटनाओं को देख करके. क्या दखल दी उन्होंने? कि उन्होंने ये ऑर्डर पास किया, इस प्रकार के दल बदल, एंटी डिफेक्शन को देख करके, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी को देख करके, दे हैव पास्ड द ऑर्डर. अब क्या कर दिया उन्होंने कि अब मनी पावर और मसल पावर को रिड्यूस करने के लिए, एज पर द ऑर्डर गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इट हैड बीन मेड कंपल्सरी. ये अब कंपल्सरी है प्रत्येक कैंडिडेट को एक एफिडेविट, एक शपथ पत्र दायर करना होता है, जिसमें वो अपने फैमिली मेंबर्स के पूरी की पूरी एजुकेशनल और जो उनके प्रॉपर्टी के डिटेल्स होते हैं वो फाइल करने होते हैं. और साथ साथ दे हैव टू ऑल्सो डिक्लेयर इफ एनी केसेस पेंडिंग इन एनी लॉ कोर्ट, या उनको किसी मामले में अगर सजा हुई है तो वो भी वो दिखाएंगे. इट इज अ वे टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, ताकि ये मालूम चले, एक वोटर को पता हो कि उनका जो कैंडिडेट है वो उसकी वस्तु स्थिति क्या है, उसकी पढ़ाई लिखाई कितनी है, उसकी कितनी प्रॉपर्टी है, और अगले इलेक्शन में फिर उसकी प्रॉपर्टी की डिटेल आएगी. तो इस दोनों में ये समझ में आएगा कि उसने माल बनाया है या काम किया है. उसके ऊपर कोई क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है तो वो मालूम चलेगी कि ये व्यक्ति अपराधी है या नहीं है. अब देखिए, जनता के हाथों में ये ताकत दी जा रही है कि आप चुनाव करो. इसके साथ साथ इट हैज बीन ऑल्सो मेड अ रूल बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी मामले में कन्विक्टेड है जिसमें उसको 2 साल से अधिक की पनिशमेंट मिल सकती है या मिल गई है, तो दैट पर्सन कैन नॉट कॉन्टेस्ट द इलेक्शन. वो बंदा चुनाव नहीं लड़ सकता है. 2 साल या 2 साल से अधिक की अगर उसे सजा हो सकती है या हो गई है, यानी कोर्ट में वो कन्विक्टेड है, उसकी केस एडमिट हो गई है, कोर्ट ने उसे ये पाया है कि एट अ ग्लांस वो लगता है कि वो बंदा अपराधी हो सकता है, उसमें सजा हो सकती है, तो वो पर्सन चुनाव नहीं लड़ सकता है. A number of leaders had been deprived to contest the election. One of the important leader of Bihar, Mr. Lalu Prasad Yadav ji, he has been debarred to contest the election only due to this reason only. He had been convicted by a court. तो वो चुनाव नहीं लड़ सकते. तो ये एक वे है पॉलिटिक्स में क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को रोकने के लिए और पब्लिक के बीच जानने के लिए कि हाँ, उनका कैंडिडेट कैसा है, वो किसको चुनने चाह रहे हैं. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट. और ये अगर एफिडेविट में आप झूठ बोलोगे, आप बोले से कुछ भी लिख देंगे, नो. एट अ टाइम, एट द मोमेंट व्हेनेवर इट हैज बीन फाउंड कि आपने गलत सूचना दी है, तो आपकी इलेक्शन तो कैंसिल होगी ही होगी. यू आर गोइंग टू बी चार्ज अंडर द फ्रॉड. आपके ऊपर चार्जेस लगेंगे और यू आर गोइंग टू बी पनिश्ड. और आज के समय में कुछ भी छिपाना असंभव है. ये जमाना आरटीआई का है, राइट टू इंफॉर्मेशन है, या पब्लिक ये सब जानती है, ये निकाल लेंगे. सो नेक्स्ट, थर्ड जो अटेम्प्ट किए गए हैं फ्रॉम द साइड ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया,
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इंटरनल डेमोक्रेसी को, पार्टी के अंदर की इंटरनल डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए ये कंपलसरी कर दिया है कि एवरी पार्टी हैज टू कंडक्ट देयर रेगुलर पार्टी इलेक्शन। जो ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन है अपने पार्टी लीडरशिप के चुनाव के लिए, CWC के चुनाव के लिए, लेकिन वर्किंग कमेटी उसके चुनाव के लिए रेगुलर इलेक्शन, उसकी रिपोर्ट आप इलेक्शन कमीशन को दोगे। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज आल्सो मेड मैंडेटरी कि एवरी पार्टी हैज टू फाइल द इनकम टैक्स, और उनको डिक्लेयर करना पड़ेगा उनके सोर्सेस ऑफ इनकम का, किसने उनको डोनेशन दिए, कितना डोनेशन दिए। हाँ, इसमें एक चीज हो गई है, पहले था कि आपको नाम नहीं बताना था, अब नियम क्या बना दिया है कि 20,000 या उससे अधिक कोई भी अगर डोनेशन आपको देगा तो आप उसका डिटेल बताओ, लेकिन 20,000 से कम वाले को डिटेल बताने की जरूरत नहीं है, अभी भी लूप होल है। तो यहाँ पे अभी क्या हो रहा है कि बड़े बड़े डोनेशन वाले को तो दिखा देते हैं, और कई बार जो ब्लैक मनी है वो छोटे छोटे डोनेशन में 20,000 से कम के रूप में आ जाती है। तो पार्टी इज फ्री विदाउट डिक्लेयरिंग द सोर्स, वो दिखाती है इतना चंदा मिला, लेकिन किससे उसको नहीं दिखाना है कि कौन दिया क्या दिया। तो ये अभी भी कमी है, लेकिन हाँ, इट्स अ वे टू कीप अ चेक ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी इन द पार्टी। सोर्स बताना हुआ किसने चंदा दिया, क्या चंदा दिया, तो एक प्रकार से ब्लैक मनी के इन्फ्लुएंस को रोकने का प्रभाव, ये प्रयास है। फिर भी कुछ कमी है, उसको भी सुधारने की जरूरत है। अभी हम बात करेंगे सजेशंस भी, तो हम बताएंगे। नेक्स्ट है, दे हैव अ होल्ड ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शंस और फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न सो दैट दे कुड डिक्लेयर अबाउट देयर सोर्सेज ऑफ इनकम। अब जो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ये तो ऑलरेडी मेड है, लेकिन इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है, अ पार्ट ऑफ सजेशन, उस पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा सजेशंस के लेकर के फॉर द रिफॉर्मेशन इन द पॉलिटिकल पार्टी। Reforms that can be made for the political parties to overcome the challenges of the political parties. We have gone through the number of challenges that the political parties are facing. We have also seen some ways, through the constitutional ways, from legal ways, by introducing a system of affidavit by the Supreme Court, conducting regular party elections and state funding and all. These are the ways the parties can be reformed. As far as state funding is concerned, it is a way of suggestion. It is a suggestive way. It has not been done. As far as putting pressure on the political parties from the public side, that is the most important and vital way to reform the political parties. Meanwhile, nowadays, a number of thinkers, political thinkers, they are suggesting few more ways to reform the party, to pressurize the political parties so that they could become more and more accountable. How it can be done? It is all about the suggestions. Different people having their different opinions related to different issues. So today, right now, we are going to discuss about those suggestions. We have already seen a number of ways how parties can be reformed. Now, these are some reforms, suggestions, not reforms. If possible, if circumstances allow, if the conditions allow, if things can be done, these things can be done, it could be a revolutionary way to reform the political parties. But there are a number of if and buts related to these suggestions. So just try to understand what are such suggestions that could make these political parties more accountable. Number one, right to recall. What that means, right to recall? Right to recall refers to a system through which voters can just recall their elected members if the member is failed to work as per the aspirations of the voters of that constituency. It means कि जनता को अपने प्रतिनिधि को वापस बुलाने का अधिकार। आमतौर पे क्या होता है, एक बार चुनाव जीतने के बाद जो हमारे नेताजी हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो जो वादे करते हैं वो भूल जाते हैं, और जनता को तो कई बार नजर भी नहीं आते, जनता उन्हें मारी मारी ढूंढती है, कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ। कई बार तो पोस्टर लगा दिए जाते हैं कई जगहों पे, लापता, हमारे जनप्रतिनिधि लापता, या तो वो अपने स्टेट के कैपिटल में डेरा डाले हुए हैं या फिर दिल्ली में डेरा डाल के बैठे हुए हैं। पता ही नहीं, आम जनता से कोई सरोकार नहीं, आम जनता उन तक पहुंच नहीं पा रही।
इस परिस्थिति में अगर जनता, उस क्षेत्र की जनता जिन्होंने उसे चुना है, वो अगर असंतुष्ट है तो 5 साल तक उन्हें मौका नहीं देना है। विदिन द 5 years, 5 साल के पहले ही जनता उन्हें वापस बुला दे थ्रू द वोटिंग। लेकिन इसमें एक कॉम्प्लिकेशंस है, एक जटिल प्रक्रिया होगी, खर्च भी अधिक है। एक बार आपने चुनाव करा के उनको जिता के भेजा, दूसरी बार अब उन्हें वापस लाना है, उसके लिए फिर वोटिंग करवानी पड़ेगी और फिर से नया इलेक्शन करवाना पड़ेगा। देयर मस्ट बी सम मैकेनिज्म कि इस प्रकार की कुछ व्यवस्था डेवलप हो कि जनता को अपने उस जनप्रतिनिधि को वापस बुलाने का भी अधिकार मिले, ताकि उसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी बने। और दूसरी बात एक ये भी होनी चाहिए कि जिस बंदे को अगर बुला लिया जाता है वापस, वो बंदा अगले 5 साल तक चुनाव से बाहर वो चुनाव नहीं कर सकता है। इट मस्ट बी अ पनिशमेंट। स्कूलों के बच्चों को पनिशमेंट मिलती है कि क्लास से सस्पेंड कर दिए जाते हैं अगर वो अपने वर्क को कंप्लीट नहीं करते हैं, अगर वो ठीक से काम नहीं करते हैं। इट्स अ वे और रिफॉर्मेटिव वे, ताकि उन पर प्रेशर पड़े, उनके अंदर अपनी जवाबदेही आए, उन्हें समझ में आए कि हमें ये काम करना चाहिए। तो जनप्रतिनिधियों को क्यों नहीं, वो तो हजारों लाखों लोगों की इच्छाओं का गला घोटते हैं, उनकी भावनाओं का गला घोटते हैं, उनके साथ ट्राई करें। इट्स अ मैटर ऑफ कंसिडरेशन। कुछ वेज निकालना पड़ेगा ताकि हम बैलेंस कर सके खर्च को भी और उनकी अकाउंटेबिलिटी को और बढ़ा सके, उन पर दबाव परफॉर्म करने की। क्रिकेट टीम में खिलाड़ी अगर परफॉर्म नहीं करता है, टीम से बाहर 5 साल तक कोई होता नहीं होगा, तो फिर यहाँ क्यों 5 साल तक वो जनता के भविष्य की मांग करते हैं। 5 साल किसी एक कौम की भाग्य को बदलने के लिए काफी होते हैं। बहुत कुछ किया जा सकता है, तो 5 साल तक हम इंतजार करेंगे। जेपी ने कहा था जिंदा हमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। कहाँ है ये बात? इन बातों के ऊपर क्या विचार किया जा सकता है? कई सारे जो राजनीतिक विचारक हैं, पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, ये इस प्रकार के क्रांतिकारी विचार देते हैं। देखिए विचार सुनने में भी बहुत अद्भुत है, अच्छा है, परंतु इसके साथ जो कुछ चीजें लिमिटेशन जुड़ी हुई है उसकी चर्चा मैंने की। सबसे बड़ी लिमिटेशन एक बहुत ही खर्चीली प्रक्रिया होगी, समय भी लगेगा। आप देखते हैं चुनाव जब हमारे यहाँ होती है तो वो क्या होता क्या, उस पूरे इलाके में कोई काम होते ही नहीं, लगभग महीनों तक वो काम ठप हो जाता है, जनता मारी करती है। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि चुनाव के नाम पे अधिकारीगण काम नहीं करते, कार्यालय खाली हो जाते हैं। क्या? तो चुनाव का प्रशिक्षण लेने गए, इलेक्शन ट्रेनिंग लेने गए, स्कूलों में परीक्षाएं नहीं होती, क्लासेस सस्पेंड हो जाते हैं। क्यों? कि भाई मास्टर साहब नहीं है, भाई फलाना आदमी नहीं है, इलेक्शन ड्यूटी में गए। क्या तरीका है? वी मस्ट डेवलप सम मैकेनिज्म कि इस प्रकार की चीजों से हम अलग हट सके। वर्किंग डेज का नुकसान नहीं होना चाहिए। कोई एक बंदा सरकारी कार्यालय में, किसी कार्यालय में अपने काम से गया तो उस बंदे ने भी कहीं ना कहीं अपने काम को छोड़ करके वहां पे गया, लेकिन वहां से निराशा मत लगती। नहीं तो एक पूरे एक मैकेनिज्म होनी चाहिए कि भाई इतने दिनों तक सरकारी कार्यालय में कोई ना आए, कोई काम ही नहीं, कोई नहीं सुनता है। ये परिस्थितियां, देयर मस्ट बी सम सोर्स ऑफ रिफॉर्मेशन। इन परिस्थितियों में कुछ सोचने की जरूरत है। नेक्स्ट रिफॉर्म्स की बात करते हैं। सजेस्टिंग ऐसा हुआ नहीं, चेक कर सकते विचार करने के बाद। नोटा एक नया मैकेनिज्म है, पिछले कुछ सालों से चुनाव में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इसकी वास्तव में कोई महत्ता नहीं है, केवल मोरल इसकी इंपॉर्टेंस है। ये नोटा है क्या? नोटा स्टैंड फॉर नन ऑफ द एबव। मीन्स चुनाव में जितने भी कैंडिडेट हैं उनकी डिटेल्स होती हैं बैलेट पेपर पर या ईवीएम मशीन में, और साथ में सबसे नीचे एक और कॉलम होता है नोटा। इसका मतलब नन ऑफ द एबव। दैट मींस कि वोटर इसमें से किसी को भी वोट देना नहीं चाहता है, इसमें से किसी भी पार्टी या कैंडिडेट के बातों से, उसके वादों से, उसके नारों से, उसके काम से जनता खुश नहीं, तो वो वोटर वो नोटा का वोट दे सकता है। लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस है, इवन कि इन एन इलेक्शन द टोटल वोट casted in the favor of nota if greater than the vote casted to the favor of any other candidate, even though there is no
दैट हैविंग मोर वोट्स इन नोटा, उस केस में भी नोटा को जो वोट मिला है उस वोट की कोई कम वैल्यू नहीं, केवल ये माना जाएगा अच्छा अधिक लोग उन्होंने नोटा को वोट दिया, लेकिन फिर जो बाकी कैंडिडेट को ये वोट मिला है उसमें से जिस कैंडिडेट को सबसे अधिक वोट मिला होगा वो विजयी घोषित हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ एक चीज है कि नोटा को ज्यादा वोट मिला था सबसे अधिक, लेकिन फिर भी नोटा के अधिक वोट वाले को वैल्यू नहीं दिया गया। यहाँ कुछ विचारकों का ये कहना है कि इन केस if voters casted majority of vote in the favor of nota, in that case there must be a re-election over there, and in that case the candidates, those who were contesting the election on that time, they must be debarred. They must not allow to contest election in that same constituency, as in earlier time voters of those constituencies has rejected them, क्योंकि पहली बार उनको जनता ने ठुकरा दिया, उसमें से किसी भी कैंडिडेट को चुनाव नहीं लड़ना होगा। तो नोटा की वोट का एक महत्व होना चाहिए, नोटा एक ताकत बननी चाहिए, एक हथियार बननी चाहिए, ताकि हमारे जनप्रतिनिधियों को एक उस कैंडिडेट से भय हो। ये वो कैंडिडेट होगा जो उनके सामने तो दिखेगा नहीं, जनता के मस्तिष्क में होगा, उसकी उंगलियों की ताकत में होगा, उस ईवीएम के अंदर मौजूद होगा, जो हमेशा उन्हें डराएगा कि अगर आपने गलत किया तो मैं यहां से निकल आऊंगा। क्या ये किया जा सकता है? इस पर सोचने की जरूरत है, विचार करने का प्रश्न है। ये बहुत ही एक इनोवेटिव आइडिया हो सकता है, एक दबाव, अगर इस चीज को हम स्वीकार कर पाए तो इसके भी विचार करने की जरूरत है। हो सकता है ये सभी विचार, इसके कई सारे प्रतिफलों को देखना पड़ेगा, किस प्रकार के इसके अंदर कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं, ये चीजें आनी चाहिए। एक और भी सजेशन कई बार लोग देते हैं, वो सजेशंस क्या होते हैं कि विनिंग कैंडिडेट must get more than 50% of votes। एक विनिंग कैंडिडेट को 50% से अधिक वोट मिलना चाहिए, तभी वो जीता हुआ घोषित होगा। मोर देन 50% वोट, 50% से अधिक वोट, मतलब एक विनिंग कैंडिडेट जो चुनाव में दो कैंडिडेट जीतेंगे उसके पास 50% से एवं होना चाहिए वोट, तब वो जीतेंगे। अभी क्या होता है, सपोज कीजिए 100 वोट्स है, ये 100 वोट्स है, ए बी सी डी ई कैंडिडेट है, इस बंदे को आ गया 22%, इसे आ गया 16%, इसे आ गया 20%, और सपोज कीजिए इसे आ गया 50%, 60 and 60, then after it is here आ गया 12%। अब देखिए आउट ऑफ 100 वोट में से ये 100 वोट में से इतने वोट बढ़ गए। अब गौर कीजिए, जीतेगा कौन? ये बंदा 40% मैक्सिमम वोट। लेकिन अगर काउंट करें इन सबको तो क्या मिलेगा? 60 वोट इसके अगेंस्ट भी थे, फिर भी ये जीते। तो देयर मस्ट बी अ रूल कि तभी आप जीते हुए घोषित किए जाएंगे जब आपको 50% से अधिक वोट आए, अन्यथा फिर से चुनाव होंगे। इस बार जो चुनाव होंगे उसमें कौन कौन कैंडिडेट होगा? केवल और केवल दो, फर्स्ट और सेकेंड कैंडिडेट, जिसको मैक्सिमम वोट मिली थी वही दो कैंडिडेट चुनाव लड़े। क्या ऐसा हो सकता है? विचार करने का प्रश्न। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि होना चाहिए, दीज आर सम आइडियाज, सम सजेशंस। ये चुनौतियां जब आई हैं पॉलिटिकल पार्टीज के सामने, और हम देख रहे हैं कि इस लोकतंत्र की जो मुख्य जो पहिए हैं वो यही राजनीतिक दल है। इन पहियों को बिल्कुल फ्रीली काम करना है, ताकत के साथ करना है। अगर ये ताकत के साथ काम नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब हमारा लोकतंत्र खतरे में है। इन्हें जवाबदेह बनाना पड़ेगा।
तभी तो अच्छे लोग आएंगे इसमें। नेक्स्ट दैट इज कॉल्ड promises made by the candidate and political parties must fulfill by them। तो इसमें क्या है, यह ध्यान देना है कि promises made by the candidates, चुनाव के समय में क्या होता है कि कैंडिडेट और पॉलिटिकल पार्टीज प्रोमिसेस करते हैं जनता के सामने, सुनहरे सपने दिखाते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं। चुनाव जीतने के बाद काम खत्म, फिर एक ही गाना आता है, कसमे वादे क्या वफा सब बातें हैं बातों का क्या। ऐसे काम नहीं होता। डेफिनेटली क्या होना चाहिए कि जो भी वो बातें करें, क्योंकि इन्हीं वादों पे दे गेट द वोट्स, इन्हीं वादों पे जब उन्हें वोट मिलता है तो यहाँ पे क्या करना चाहिए कि व्हाटएवर प्रॉमिसेस दे मेड इट मस्ट बी मेड मैंडेटरी फॉर देम टू फुलफिल। इफ दे फेल टू कंप्लीट दोस प्रॉमिसेस देयर मस्ट बी द चार्जशीट अगेंस्ट देम। ये झूठे वादे करके फिर से वही रहा है, अगर आपने किसी से वादा किया है तो वो वादा निश्चित रूप से पूरा होना चाहिए। अगर आप वादे को पूरा नहीं कर पाते इट मींस यू आर एट द फॉल्ट। आपने झूठी बातें करके किसी को बरगलाया है, बहकाया है, फुसलाया है, उनको झूठे सपने दिखा करके आप उसके नीति निर्माता बन गए हैं, उसके भाग्य विधाता बनने की प्रयास किए और आप उन वादों को पूरा नहीं करते हैं। आपकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, झूठ क्यों बोला आपने? तो इस प्रकार के मिथ्या वादे नहीं। हाँ, इसके ऊपर बात आती है कि कई चीजें ऐसी होती है जिसको पूरा हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो वादे एक साल दो साल में नहीं किए जा सकते। आप ऐसे वादे मत करो, कम विथ कॉन्क्रीट आइडियाज विथ प्रॉपर प्लानिंग। आपके मुंह में जो भी आता है बोल देते हैं। यू मस्ट प्रेजेंट द वे यू आर गोइंग टू फुलफिल द योर प्रॉमिसेस। रोड मैप दिखाइए, जनता के सामने बातें रखिए ताकि जनता विचार कर सके क्या ये चीजें हो सकती हैं या ये हवाई है, केवल नेताजी का नारा है, जनता को ठगने का एक मुहावरा है। ये झूठे वादे नहीं होने चाहिए और जो झूठे वादे करके चुनाव जीत करके आए और वो अगर नहीं कर पाते हैं अगले 5 सालों में तो 5 साल एक दिन होते होते उनके ऊपर FIR हो जाना चाहिए झूठ बोलने का, क्योंकि उन्होंने लाखों लोगों की भावनाओं को आहत किया। क्या ऐसा हो सकता है? विचार करने का प्रश्न। एक और चीज हम लोग कर सकते हैं, सबसे बेहतरीन वो है पब्लिक प्रेशर बिल्डर, पब्लिक ओपिनियन। क्योंकि आपको पता है जनता ही जनार्दन है, लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है। तो जनता की आवाज, जनता की भावनाएं, जनता का मत पॉलिटिकल पार्टीज को मानना पड़ेगा। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टीज ने किसी क्रिमिनल कैंडिडेट को वोट टिकट दिया, सारे वोटर्स उस पार्टी और उस कैंडिडेट का बाइकआउट करें, हम आपको वोट नहीं देंगे। अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज ने इलीगल वे में जाकर के किसी को डराया धमकाया, ये पब्लिक है, ये पब्लिक सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है, सबको पहचानती है। इसके लिए FIR की जरूरत नहीं होती है, पुलिस सपोर्ट नहीं चाहिए। जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है, ये हर वो चीज जानती है तो शायद पुलिस नहीं जानती या वो कहना नहीं चाहती। क्यों? क्योंकि कोई FIR नहीं है, कोई रपट नहीं है। लेकिन जनता तो अपनी अदालत में रपट दर्ज करती है, उसे पता है। पब्लिक ओपिनियन बिल्डअप होनी चाहिए। हर रिफॉर्म्स के पीछे की ताकत ये पब्लिक ओपिनियन होनी चाहिए। अगर ये पब्लिक ओपिनियन है तो सारे राजनीतिक दल बिल्कुल अनुशासन में कार्य करेंगे, अनुशासित होकर कार्य करेंगे, कहीं हिलने हिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन चाहते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन में रहने वाले लोग भी क्या हो, डिसिप्लिन में। देखिए, हम बात जब भी करते हैं तो एग्जीक्यूटिव की परफॉर्मेंस को अगर हम देखें बहुत कॉन्शियस है, क्योंकि सीधा हमारा जो सामना होता है वो एग्जीक्यूटिव के परफॉर्मेंस से होता है। सरकार के कामकाज पे हम टिप्पणी एग्जीक्यूटिव के परफॉर्मेंस पे ही बेसिकली करते हैं। एग्जीक्यूटिव जो कार्यपालिका है, जो नियमों को लागू कराती है, चाहे वो मंत्रीगण हो, प्रधानमंत्रीगण हो या ऑफिसर्स हो, जो बाबू साहब हो ऑफिस में, इनके एटीट्यूड को सुधारने की जरूरत है। तो ये तो हो गए परमानेंट एग्जीक्यूटिव, व्हाट एवर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव।
क्योंकि हम पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को ही सुप्रीमेसी देते हैं, वो लीडरशिप को उनके हाथों में देते हैं, उनकी भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। कोई एक अधिकारी ठीक से काम नहीं करता है तो मंत्री महोदय उन्हें सस्पेंड कर देते हैं अविलंब। तो ये मंत्री सस्पेंड क्यों नहीं होता है? क्यों उसके खिलाफ बहुत सारी कंप्लेन की जरूरत महसूस होती है तो प्रधानमंत्री उनका आमतौर पे विभाग बदल देते हैं? सस्पेंड क्यों नहीं किया जा सकता? ये प्रक्रिया उनके लिए क्यों नहीं? सोचने का प्रश्न, विचार करें। और सबसे बड़ी ताकत पब्लिक ओपिनियन। सारे रिफॉर्म्स के स्रोत, जो मूल स्रोत है वो पब्लिक ओपिनियन है। उसके बिना कोई भी रिफॉर्म संभव नहीं है। अगर उस बिंदु पे हम बात करते हैं, इस रिफॉर्म्स के ऊपर बात करना चाहते हैं, तो पब्लिक ओपिनियन की बिल्डअप पे बात करें। चलो ये तो बात रही सजेशंस की, पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर डंडा चलाने की और रिफॉर्म्स की बात है, सुधार करने की। परंतु सबसे बड़ी बात यहाँ पे ध्यान देने को क्या है, अगर आप लगातार केवल ब्रेक्स लगाते रहेंगे, क्या गाड़ी चलेगी? इतने सारे आपने ब्रेकर बना दिए, क्या गाड़ी चलेगी? नहीं। मीन्स व्हाट आई मीन टू से, ओवर रेगुलेशन हार्म्स द परफॉर्मेंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। अगर आपने बहुत सारे नियमित बना दिए पॉलिटिकल पार्टीज के चीजों को दूर करने के लिए, हर बार हर चीज को दूर करने के नियम कानून आपने बना दिया, what will happen? The political parties now try to just leave their fundamental works. Why they should put their nose in such kind of matters जिसमें फंसने का खतरा हो? अगर वो पूरा नहीं कर पाए तो उसमें वो उनके ऊपर FIR हो जाए, वो डिबार हो जाए, वो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, वो अपने आप को अलूफ करने लगेंगे। क्या होगा? मैंने क्या कहा, पॉलिटिकल पार्टीज व्हील्स ऑफ डेमोक्रेसी, चक्के फ्री होने चाहिए, आपके गाड़ी के पहिए, आपके साइकिल के पहिए फ्रीली मूव करने चाहिए। अगर वो जाम चल रहा है यानी कि उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम है तो यू हैव टू वर्क मोर, अधिक फोर्स लगाना पड़ता है, फिर भी दूरी कम है। तो अब यहाँ पर संतुलन बनाना पड़ेगा। पॉलिटिकल पार्टीज को रेगुलेट करने के लिए हर समस्या का हल कानून का डंडा नहीं होगा। अगर हर बार आप कानून का डंडा चलाते हैं, कानून का हंटर चलाते हैं और आप इलेक्शन कमीशन को एक भूखे शेर के रूप में खड़ा कर देते हैं कि वो बिल्कुल लपकने को तैयार है पॉलिटिकल पार्टीज को, तो पॉलिटिकल पार्टी अपने नेचुरल वर्क को भी नहीं करने लगेगी और ये लोकतंत्र के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। क्या करना चाहिए सर? अभी तो आपने कहा कि रिफॉर्म्स में ये चीजें आनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी मजबूती से करनी चाहिए, उनके ऊपर जवाबदेही डालनी चाहिए, उनके ऊपर FIR तक लॉन्च होने की बात आपने की। इट इज नॉट माई ओपिनियन, इट इज द ओपिनियन ऑफ अमन पीपल। तो मेरा ओपिनियन क्या है? मेरा कोई ओपिनियन नहीं है, जनता का ओपिनियन। हमें रास्ता ढूंढना होगा और सबसे बेहतरीन रास्ता है ये जनता की ताकत, जनता की आवाज। अगर जनता जागरूक हो जाए, जनता यह निश्चय करे कि हमें इस प्रकार के किसी भी पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट को अपना मत नहीं देना है जो जन भावनाओं का आदर नहीं करते हैं, जो न्याय नहीं करते हैं, जिनका चरित्र और चेहरा अलग अलग है, जिनके विचार अलग अलग हैं, जिनके पास काले धन की ताकत है, जिनके पास अपराधियों की शक्तियां हैं, जो महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं, जो समाज की तरक्की के प्रति जागरूक नहीं है, जो अपने किए गए वादे को पूरा नहीं करते हैं, उन सारे जनप्रतिनिधियों को जनता ठीक कर सकती है। वो डंडा जनता का होना चाहिए। हाँ, नियमों का एक सपोर्ट होना चाहिए, रेगुलेशन मस्ट बी देयर। हम आंख नहीं बंद कर सकते, लेकिन हम आंख भी नहीं दिखाएं। डेमोक्रेसी इज अ रूल ऑफ पीपल, इट मस्ट डिपेंड्स अपॉन कंसेंसस। सहमति से चलनी चाहिए। सहमति डंडे से नहीं आती, सहमति विचारों के परिवर्तन से आती है। उन विचारों के परिवर्तन के लिए माहौल तैयार करना पड़ेगा। तो ये एक मल्टी डायमेंशनल एफर्ट होनी चाहिए जिसमें सरकारी प्रयास और जन भागीदारी दोनों का सहयोग होना चाहिए।
तभी सुधार संभव है। इसलिए ये सवाल पूछे जाते हैं परीक्षा में 5 मार्क्स के लिए। ओवर रेगुलेशन जस्ट डिटोरिएट द फंक्शनिंग ऑफ द political parties, or over regulation on political parties harms the democracy. Discuss, describe. You have to explain in such a way. दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण, यहाँ पे भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। जब हम सजेशंस की बात आते हैं तो सजेशन में आप जो विचार रखना चाहते हैं रख सकते हैं, बट इट मस्ट हैव सम सॉर्ट्स ऑफ लॉजिक। इरैशनल थॉट्स को रखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हमारे रिफॉर्म्स की बातें हुई सजेशन के रूप में। तो ये हमारा चैप्टर अब कंप्लीट हो रहा है। ये पॉलिटिकल पार्टी से चैप्टर हमारा फिनिश कर रहे हैं। इफ यू आर हैविंग एनी क्वेरीज, यू मे सेंड दोस क्वेरीज टू अस, वी विल गिव यू द आंसर।